I have heard in college that creatives is a department which has maximum work as compared to other departments. So what would you think? How much it is true? So we can say like पहला रोल creatives प्ले करता है, दूसरा रोल पब्लिसिटी करता है कि पब्लिक को लाना, हाँ दूसरा रोल वो पब्लिसिटी का Right. होता है, थर्ड रोल इवेंट में करता है, राइट? और नहीं wanted to become entrepreneur, to become the creative heads, how this transformation happened. तो क्रिएटिविटी बन रहा है, एक पोस्टर अगर बना है तो उसे कंफर्म कौन करता है, लाइक हेड करता है या प्रेसिडेंट करता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज अ स्पेशल एपिसोड इन विच वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद आवर क्रिएटिव हेड मिस अनुष्का जोशी. Welcome Miss Anushka Joshi to our YouTube and new episode series. Thank you for having me here. Let's start our video with a short introduction of you. Hello, I'm Anushka Joshi. I'm from second year biomedical department and I'm the creatives head for the BMSC committee for the tenure of 2023 and 24. So my role is basically to do the posters, grid and many different things which comes under the creative domain and even to allot them to my core members. That's nice. First of all, thank you for joining us today. So I would like to just ask some questions. My first question is to how do you foster creativity and innovation within your creative teams? Okay, so coming to this question, like coming to the answer of it, well, my team members, my core team members, what I have seen in them is that they have the creativity part within them, which in short means that they know how to do the main handmade things. Just for example, like they can do very good greeting card works, but when it comes to Canva, it is right now very new to them. So they are having this time to explore these stuffs right now. So they are very much obedient. So they are doing it, and what they need right now is a push at some moment. So that is what I and my co-heads do. Like Yeah. that position what need to do the post for the Yes. core members, right? Yes. Can you share your core member names? Yeah, so there are 5 members. Should I tell their names? Yes. Yeah, so starting with Siddharth, Mridula, Prajakta, Sanskruti, and Chaitanya. Check. Yeah. If I ask you to describe the person by a single word, how do you describe it? All my 5 members. So actually, one adjective which comes in my mind is obedient. It may sound very much simple or common, but it is not. They are obedient because whenever I or my co-heads assign them any sort of work, even though they know or they don't about it, they try to do it, and they do some of the things and they give it to us and like ask for our inputs, like what should be done more, like should I add something to it or should I subtract something for it from it. So like they are obedient about it, like they don't take it like any work, any simple or any difficult work for granted. So that is it. So now just try to imagine the Siddharth personality. How do you describe it? One, like he is enthusiastic, he is determined, he is like talkative, he is extrovert. What one word describes Siddharth? Siddharth, I would use one sentence, the person I can rely on. Rely on as in जब भी मैं कुछ काम देती हूँ, इवन दो ही इज़ आउट, वो बोलता है कि लाइक थोड़ा टाइम रुक, मैं घर पे पहुँच कर देता हूँ, और वो कुछ ना कुछ करके देगा. एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर उसको आइडिया नहीं रहेगा कि ऐसा ही करना है कि नहीं करना है, ही वुड मेक इट. अगर एक पोस्टर बनाना है तो वो उसका ऐसे 2-3 साथ में करेगा, मतलब जस्ट फॉर, मतलब मैं नहीं तो मेरे को हेड्स बोल सकता है कि मतलब नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, मतलब वो ऑप्शंस करेगा, देगा. मतलब वो बहुत ऐसे रिलायबल पर्सन है, उसको मैं कभी भी फ़ोन करके बोल सकती हूँ कि अभी करना है, थोड़ा जल्दी करके दे. सो ही इज़ फास्ट. So we can say that Siddharth is like a determined type of person. Yeah, he's He takes determined. time, but they will definitely do it in their way. हाँ, he will do it. Nice. And the second core member is Mridula. Mridula. So let's imagine the Mridula personality. What did you tell about her? Mridula, she is very much hard working. इवन इन हर एकेडमिक्स वो बहुत हार्ड वर्किंग है,
और अभी क्रिएटिव का मैंने उसका देखा, मैंने पहले का उसका ड्राइंग का वर्क, तो बहुत अच्छा किया था उसने। ऐसे जो हम लोग नॉर्मल ड्राइंग्स करते हैं स्कूल में नहीं, तो वो बहुत अच्छा किया था उसने। और कैनवा वो अभी सीख रही है करते करते। तो वो अभी लाइक जब उसने स्टार्ट किया, शी इज़ गोइंग गुड। लाइक वो ट्राई करती है कि खुद का आइडियाज़ अच्छे से पोर्ट्रे करे। तो शी इज़ बेसिकली हार्ड वर्किंग। Hard working personality. The next person is Sanskriti Sankhe. So now just go do deep into the Sanskriti Sankhe. What kind of personality you think Sanskriti Sankhe has? शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। मतलब वो ट्राई कर रही है कि मतलब वो सीखे, मतलब बहुत कुछ ऐसे सीखे। तो वो ट्राई करती है कि लाइक वो अपने थिंग्स में वो सब इनपुट करे। तो वो अभी स्लोली स्लोली करके बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ, मतलब इवन शी इज़ हार्ड वर्किंग और है, मतलब क्रिएटिविटी है उन लोगों में। सो So you अच्छा can say करते हैं। like he is exploring personality. हाँ, उनका बहुत एक एक्सप्लोरिंग अब तक उसको पर्सनैलिटी उसका है। डोमेन नहीं मिला है, इसलिए he is exploring. Like हाँ, that. मतलब उसको इंटरेस्ट है क्रिएटिव स्टफ्स में। मतलब एक बेसिक पोस्टर से लेकर कुछ हैंडमेड थिंग्स बनाने में उसको है इंटरेस्ट। तो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है जस्ट कैनवा का। तो उन लोग भी हम लोगों की तरह ही सीख रहे हैं। Oh, they are also हाँ, seeking, दे आर learning लर्निंग लाइक विद with the अस। small steps. हाँ, जैसे हम लोग सीख रहे हैं वैसे। So now let's go in the Prajakta personality type. What did you think? How the personality of Prajakta है? अभी कैसा है उसका पर्सनैलिटी वैसे? Personality. ओके। प्राजक्ता वो एक्चुअली अभी उसको पता है, थोड़ी फार थिंग्स उसको पता है। लाइक उसको स्टार्ट पता है। इट वॉजेंट कि उसको पता ही नहीं है कि यूज़ कैसे करते हैं। उसको आइडिया था, बेसिक आइडिया। तो अभी वो कैसे करिए, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मिला, तो लाइक वो उसको देखकर कुछ अपने आप से इम्प्लीमेंट करने लगती है। तो एक अच्छा क्वालिटी के लिए खुद से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। So like he has a very good quality of implementation. जो Yeah, भी सामने है उसमें implementation. अब मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ। मैं कैसे कुछ ऐड कर हाँ। सकता हूँ. And the last one core member is Chaitanya. चैतन्य। So what kind of personality Chaitanya Ganguly you think है? He is very creative. Now why I said this wasn't something कि जो कैनवा से रिलेटेड नहीं तो किधर से रिलेटेड हो, बट उसका मैंने थोड़ा फार वर्क देखा था जब उसने उसका लाइक इंटरव्यू के टाइम दिखाया था। बहुत अच्छा किया था उसने। जो उसने खुद से मतलब वो डिजिटल नहीं था, वो उसने बनाया था पेपर से, बहुत अच्छा किया था। तो अगर और वो भी सीख रहा है कैनवा यूज़ करने का। सो वो भी वैसे करते हैं। एक्चुअली द थिंग इज़ कि पाँचों लोगों में एक सिमिलैरिटी कि उन लोग खुद से ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ, थोड़ा रेफरेंस पॉइंट एक मिल जाना तो वो ट्राई करते हैं। फिर वो बाद में फॉरवर्ड करते हैं और पूछते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं और चाहिए। कैसे हाँ अच्छा करें. हाँ और इवन मुझे भी याद है चैतन्य गांगुली के बारे में, मतलब आपको शायद पता होगा, हम लोग क्लासरूम में गेम खेल रहे थे डेयर का. सो आई हैव ऑब्जर्व दैट ही हैज़ इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. लाइक उसे डेयर दिया गया था कि तू पब्लिसिटी कर किसी भी रैंडम ग्रुप के साथ, बट ही कांट डू दैट. सो ही चेंज दैट डेयर टू डांस ऑन द सॉन्ग दैट बादल बरसा बिछड़ी. So he danced so well that we forget about the previous day, that publicity day. So at that point of time, I have observed that he has a little bit introvert type of personality, but he is definitely so much creative. That's why he is in creative show, right? वो इंट्रोवर्ट वाला उसका पर्सनालिटी वैसे है, बट वो एट टाइम जब भी काम करना है वो एम्बिवर्ट बन जाता है। वो खुद से काम करने लगता है, उसको आ रहा है नहीं आ रहा है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइक थोड़ा ज़्यादा था कि मतलब थोड़ा कुछ साथ में होना चाहिए काम, बिकॉज तभी पता नहीं था इतना इसके लिए। बट अभी लाइक अभी भी थोड़ा थोड़ा करके पता चल रहा है, तो लाइक वो खुद से ट्राई कर रहा है बहुत कुछ। तो मतलब है, जैसे डांस का तूने बोला अभी, तो हाँ मतलब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, बट लाइक वो एंजॉय कर लेता है। जो सराउंडिंग है उसके साथ हाँ मैच, हाँ वो खुद को वैसे कर सकता है, Adjust कर हाँ एडजस्ट कर देता है। I have heard in college that creative is a department which has maximum work as compared to other departments. So what would you think? How much it is true? Okay, so I would say this is about 85 to 90% true, not 100% true. That is like उसके लिए भी एक रीज़न है। क्रिएटिव्स का बेसिक जो काम होता है ना, वो बैक एंड काम रहता है। लाइक इवेंट के टाइमिंग पे नहीं होता है। जैसे इवेंट्स का जो काम रहता है उनका इवेंट के टाइमिंग पे होता है,
बट क्रिएटिव्स का वैसा नहीं होता है, उनको इवेंट के पहले सब कुछ रेडी होना चाहिए, वैसा रहता है। लाइक वो पोस्टर नहीं तो पीपीटी एनी ऑफ विच, तो उनको पहले काम वो करना रहता है। तो तभी से रहता है कि कभी एक पोस्टर रहेगा, नहीं तो कभी कभी बहुत सारा थिंग्स रहेगा। सो बहुत सारे थिंग्स रहते हैं काम करने के लिए। बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स का पार्ट, इवेंट्स का जो टीम है उनको भी काम रहता है उतना कि मतलब आई डोंट नो उनको कितना परसेंट ज़्यादा काम रहेगा, नहीं तो कम रहेगा, पर उनको भी रहता है बिकॉज इवेंट के टाइमिंग पे उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है और हम लोग को इवेंट के पहले प्रेजेंट रहना पड़ता है। मतलब इवेंट के टाइम फिजिकली प्रेजेंट ऑब्वियसली रहना पड़ता है दोनों को भी, बट इवेंट के पहले का काम हम लोगों का रहता है, तो वो हम लोग करते हैं। तो लाइक उसमें भी बहुत सारा काम रहता है, बट हाँ नॉट मैक्स, बट रहता है, बहुत सारा काम रहता है। लाइक फर्स्ट जो काम होता है वो आपका ही रहता है, जो इमेजिनेशन में है आपके वो आपको ऐसे Right. पोस्ट Right. एज अ मैसेज हाँ. वो आपको इम्प्लीमेंट करना Right. पड़ता है। मतलब- लाइक फर्स्ट इंप्रेशन आप बनाते हो कम्युनिटी या हाँ. कॉलेज में, उसके बाद इवेंट्स जो है वो उसे मेंटेन करता है, सब हो सके ड्यूरिंग द इवेंट। राइट। मतलब फर्स्ट वाला जो एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जो एक फर्स्ट थिंग रहता है, फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस करने वाला जो एक थिंग रहता है, वो पहले क्रिएटिव्स का काम रहता है। जो आइडिया नहीं तो जो भी पर्पस रहेगा वो इंट्रोड्यूस करेगा थ्रू पोस्टर्स, ये तो ऐसा कुछ फ्लेक्स के थ्रू, और उसके बाद जो एक्चुअल इवेंट में कुछ होस्ट करेंगे, नहीं तो जो एक डायरेक्शन बनेगा, तो वो सब इवेंट्स का काम करता है। अभी इधर और भी सब लोग आते हैं, पब्लिसिटी और वो, बट अभी जो मैक्स पार्ट बोल रहे थे उसके लिए आई वुड से दिस So we can say like पहला रोल क्रिएटिव्स प्ले करता है, दूसरा रोल पब्लिसिटी करता है कि पब्लिक को लाना, हाँ दूसरा रोल प्ले रोल वो पब्लिसिटी का Right. होता है, थर्ड रोल इवेंट में करता है, राइट? और नहीं थर्ड रोल डॉक्यूमेंट्स का रहता है। एक्चुअली कौन से भी इवेंट्स के पहले डॉक्स का काम रहता है, तो लाइक परमिशन स्टार्ट करने मतलब परमिशन लेने से, तो वो डॉक्यूमेंट्स का काम होता है। तो इवेंट्स के पहले टेक्निकल का भी काम होता है, इवेंट्स में भी टेक्निकल का काम होता है, बिकॉज उनको तभी रहना पड़ता है प्रेजेंट, देखने के लिए कि पीपीटी चल रहा है कि नहीं, वेदर द माइक इज़ वर्किंग और नॉट। हाँ, हॉस्पिटैलिटी का भी काम रहता है, वो तभी रहता है इवेंट के टाइम पे। या like peoples are comfortable in their position or not. इवेंट स्पॉन्सर्स का भी काम रहता है, वो इवेंट के पहले। I know that in first year you are in the VIT Innovation Unicorn, right? So at that time I think you will become entrepreneurial life. I think you are doing that also. राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग इट You अभी are तो। just focusing on the creative side. हाँ, अभी जो कमिटीज़ में हूँ वही, और एकेडमिक्स। So I just wanted to know how this transition happened, like from wanted to become entrepreneur to become the creative heads. How this transformation happened? एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है ऐसे थॉट से चालू नहीं किया था। इट वाज जस्ट कि मुझे सोशली जो स्किल्स डेवलप करने थे, मुझे उसके लिए मतलब मैंने स्टार्ट किया था, जो ज्वाइन किया था। सो आई डिड इट फॉर अबाउट 2.5 मंथ्स। तो उसके बाद मुझे एक थिंग का रिक्वायरमेंट था, पर वो तभी वो प्रेजेंट नहीं था वो थिंग। सो इसकी वजह से मतलब तभी मैंने एक ब्रेक सॉर्ट ऑफ ले लिया था, मतलब इट आई वुडंट से अ ब्रेक, बट तभी मैंने स्टॉप कर दिया था करने को। बट उसके बाद ऐसे हुआ कि मुझे और भी डोमेन से एक्सप्लोर करना था, बिकॉज मैं स्कूल के टाइमिंग पे ऐसे क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ वर्क में तो ये सब थिंग्स में रहती थी, बहुत सारी थिंग्स में, तो मुझे इंटरेस्ट था, पर मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया था। सो व्हेन आई हर्ड अबाउट BMSA का इंटरव्यूज़ है अभी, सो मुझे जाके ट्राई करना चाहिए, देना चाहिए। हाँ Because आप पहले से क्रिएटिव में थे। हाँ, मतलब या थोड़ा सा पहले एक था, थोड़ा लिंक था इसके लिए, और इंटरेस्ट था, वो मेन थिंग था। हाँ, मेन इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आपको एक पोजीशन रिक्वायर। एज यू सेड द कोर मेंबर का काम होता है कि पोस्टर्स वगैरह बनाना, क्रिएटिविटी को बनाना। तो जो क्रिएटिविटी बन रहा है, एक पोस्टर अगर बना है तो उसे कंफर्म कौन करता है? हेड करता है या प्रेसिडेंट करता है? हम लोगों के प्रेसिडेंट, BMSC के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है सानिया दी और राशि दी, तो उन लोग कर तो उनका जो डिसीजन होगा कि हाँ ये ठीक है, तो फिर वो प्रोसीड तभी होगा हर एक पोस्टर। हर एक पोस्टर, मतलब वो छोटा से छोटा थिंग रहने दो तो बड़ा थिंग रहने दो, तभी उन लोग बोलते कि ओके ठीक है डन, तभी हम लोग भेजते आगे। और ये जो BMSA का लोगो है या BMSA का लोगो है, हाँ। इसे यूज़ करने के लिए कम्युनिटी की परमिशन करती है, ठीक है? एक्चुअली ये जो लोगो है, अभी तो हम लोग कुछ भी अभी तक BMSI का के साथ एक ही कोलैबोरेशन मतलब
ऐसे स्पेसिफिक बहुत बड़ा कुछ अभी तक कोलैबोरेशन वाला इवेंट हुआ नहीं बहुत बड़ा ऐसा कुछ, बट इट्स है कि वो मेरा होने दो, मतलब BMSA का होने दो, नहीं तो BMESI का इवेंट होने दो। नॉर्मली क्रिएटर्स वाले ही बनाते हैं पोस्टर, तो उनको लगता है लोगो। सो हम लोगों के कोर मेंबर्स के पास और हम लोगों के पास रहता है लोगो, सो वी कैन यूज़ इट, नॉट एनी अदर पर्सन, बिकॉज उनको ज़रूरत ही रहता है इसका। Consider you are on a trip and suddenly एक event happen हो रहा है अपने कॉलेज में, और if you are supposed to hand over your position for that event only to someone from the college committee, so what whom the person will be and why? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ इवेंट रहेगा, हम लोगों को बिफोर हैंड ही पता रहेगा कि क्या इवेंट्स है, बिकॉज हम लोग पहले करेंगे काम उसका। सो नॉर्मली तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बट अगर मैं नहीं रहूँगी तभी, सो मुझे हैंड ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा पोजीशन को। इट वुड बी लाइक, इसके लिए हेड्स को हेड्स इन लोग साथ में काम करते हैं। सो इट वुड बी लाइक इधर सानिका और जयदेव उन लोग को हेड्स है, तो उन लोग दोनों साथ में काम कर लेंगे इसका। So like आप present नहीं हो तो co-heads और हाँ, जयदेव उन लोग काम करेंगे। हाँ। So the second situated question is, let's consider the team has made a poster and the president or vice president doesn't like it. Like just event is there in 2 days and the poster is not liked by president or vice president, even by you. So at that time, that point of time, what will you do? If they don't like our poster which we have sent, so then whatever the requirements are हम लोग फिर से करेंगे पोस्टर। अगर वो एक दिन पहले भी रहेगा तो भी हम लोग बैठ के करेंगे पूरा नया नया with core members. विद कोर मेंबर्स नहीं, अगर वो फटाफट सबमिट करना रहेगा तो हम लोग ऐसे एक ग्रुप में मतलब बैठ के काम कर रहे हैं, समझा रहे, वो पॉसिबल नहीं रहेगा। तभी मैं, सानिका, जयदेव हम लोग तीनों साथ में कर देंगे। जो heads और co-heads है वो मिल गए। हाँ, हम लोग कर देंगे पोस्टर। And what did you think are the pros and cons of becoming head or co-head as well as core in creative? वेल आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज मुझे भी सीखने को मिल रहा है। ऑनेस्टली जितना पहले कुछ थोड़ा थोड़ा पता था उससे थोड़ा ज़्यादा पता चल रहा है, स्लोली समझ में आ रहा है, जल्दी नहीं होता। तो वो थिंग है, बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों में भी एक ही आएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर ही आएगा। आप लोग अच्छा पोस्टर सबमिट करो या फिर नॉट सो गुड वाला पोस्टर सबमिट करो, तो उनको अच्छा लगा नहीं तो नहीं लगा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वो तुम लोगों का एक काम है कि वो पोस्टर उतना अच्छा नहीं तो उतना बनना चाहिए, तो वैसा बनना चाहिए जो रिक्वायरमेंट्स को वो एक पूरा करे। सो उसके लिए वो हम लोगों का काम है, सो वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And what did you think are the cons of becoming head? दोनों भी यही है, बिकॉज अगर अच्छा गया तो इट वुड बी कि सब लोग का कोई तारीफ़ करे, तारीफ़ ऐसे नहीं कि कुडोज दे कि अच्छा है, नहीं तो ये अच्छा गया। पर जब भी नहीं होगा तभी भी लाइक सामने से पॉजिटिव फीडबैक, आई मीन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, तभी एज एन हेल्दी क्रिटिसिज्म भी तभी मिलेगा कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो भी है। हाँ, बोले वो तुम लोगों का काम है, तो तुम लोगों को दोनों भी लेना पड़ेगा साथ में और करना भी पड़ेगा काम। So like हर काम परफेक्शन से नहीं होता, ऊपर नीचे होता। हाँ, मतलब तुम लोग ट्राई करो हर टाइम कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करने को, नहीं तो कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करने को, थोड़ा टाइम में कुछ अच्छा लाने का कोशिश करने को, बिकॉज वो रिक्वायरमेंट होता है कि कभी कभी बीच में कुछ काम अगर दिया गया तो हम लोगों को थोड़ा ठीक ठाक, बहुत कम टाइम में तो एटलीस्ट थोड़ा तो अच्छा, मतलब अच्छा करना चाहिए वो टाइम पे, तो उसका हम लोगों को देखना पड़ेगा वैसा, तो उतना करना चाहिए। So now let's start with our rapid fire question. I will ask some question, you have to answer it quickly. Okay? So my first question is who is the favorite person of you from this world? My family members. Family members. Nice. And let's suppose you get a chance to become head in different committee other than creativity. So which committee will you? Head, I would go for documents. Docs, yeah. Where did you see yourself in next 5 years? Doing masters in Europe. Maybe. In biomedical. Yeah, in biomedical. And did you see yourself as a president or vice president for the next time?
Well, right now I don't see myself as a president or vice president in a futuristic manner for the next year. Right now I'm looking at myself as a creative ahead, like for doing posters or PPT. Like for Yeah, handling things, yeah, like whatever the position you have, like for this year, we are focusing on yeah. that. Nice. And what is BMSA according to you? Uh, so I think BMSA is a committee which has different like 7 domains. They do their work for bringing out the interesting parts of biomedical domain and to showcase them to the students. It's like you can say the BMSA is a committee to nurture the student talents in the या college. या मतलब जो बायोमेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो वो बिकॉज ये फील्ड बहुत अनएक्सप्लोर्ड है Because सो जैसे नाम है BMS like Biomedical Student Association Association. to explore various things in biomedical field, right? And what qualities do you think a creative head or co-head should have? should have फर्स्टली लीडरशिप स्किल्स में बहुत सारा थिंग्स आता है तो उसमें से 2 थिंग आई वुड से फर्स्ट इज टू हैंडल थिंग्स at time and to have to have that quality or the nature like that characteristic within yourself to keep on creating or to keep on experimenting. Get a chance to become entrepreneur or manager in a corporate world, what would you choose? Well, right now आई थिंक कि बहुत सारा थिंग्स जैसे एक्सपेरिमेंट बेस पे होता है थिंग्स लाइक ट्राई करना है ये करना है वैसे तो राइट नाउ आई वुड से एंटरप्रेन्योर या मतलब उसके लिए एक जो अभी डेवलप करने का टाइम है तो एट दिस मोमेंट आई कैन डेवलप माई सेल्फ वो तरीके में कि ट्रायल एरर करना है वैसे वे में डेवलप करना है तो आई कैन डू इट राइट नाउ लाइक फ्रॉम नाउ आई कैन स्टार्ट डूइंग इट. So maybe. So I think you have already started from first year to become. Yeah, but right now I'm not doing it in like anything. I'm not continuing right now. So if I start doing it again, so it would work. It would work. Now the last question for this episode: what would be your advice to our new juniors? Please mix up. Kindly mix up. बहुत ज़रूरत है मतलब वो सिर्फ बायोमेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी सब लोग अपने अपने शेल में हैं. सो टू कम आउट ऑफ दैट शेल उसको टाइम लगता है सो टेक दैट टाइम बट कम आउट ऑफ दैट शेल बिकॉज अपने ही शेल में रहोगे ना तो कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे लाइक कुछ स्कोप दिखेगा ही नहीं किसी में भी सो रैदर कम आउट ऑफ योर लाइक कंफर्ट जोन और कुछ ट्राई करने को चालू करो इवन दो यू आर नॉट श्योर विद इट करो एकेडमिक्स करो अभी स्टार्टिंग में वो करना ज़रूरी है बट उसके साथ एक थिंग तो साइड बाय साइड करो कॉलेज एकेडमिक तो चलने ही वाला है उसको रोकना नहीं उसको इंटरप्ट नहीं करना इम्पॉर्टेंट है बट वो भी करो भी करना है और वो स्टार्ट भी करना Right, है right. नो मैटर व्हाट पीपल से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड दैट्स अ ग्रेट प्लेजर टू सिट in front of the creative side of the BMC committee. I hope you also enjoyed this episode very much. Yes, so thank you much. for having me. Thank you.